نہیں آتی. کچھ باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو جلدی سے ذہن میں نہیں نہ آتی, عقل میں نہیں آتی. میں سامنے کی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں. پھر یہ ہے علامہ طباطبائی درس فلسفہ دے رہے ہیں قم میں. آئے مطہری شہید ان کے درس میں شریک ہو رہے ہیں. اس میں علم فلسفہ میں ایک بحث آتی ہے کہ یہ دنیا حادث ہے متحرک ہے. دنیا حادث ہے متحرک ہے, صرف اللہ کیا ہے قدیم ہے واجب الوجود ہے. ورنہ یہ دنیا حادث ہے یہ نا, کل تک ہم نہیں تھے آج ہیں کل نہیں رہیں گے. ایک وقت میں ہم چھوٹے سے تھے آج جوان ہیں آج بوڑھے ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ حرکت ہے. تقریباً ایک ہفتے تک علامہ طباطبائی کیا ہے اس درس کو سمجھاتے رہے. آئے مطہری برابر میں سامنے شاگرد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ذہن میں نہیں آ رہا. بس گھر میں جب جاتے ہیں یا کمرے میں جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں استاد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات متحرک ہے, میرا کمرہ یہاں مدرسہ فیضیہ میں وہیں کا وہیں ہے, حرم معصومہ وہیں کا وہیں ہے, قم شہر گئے ہمارا شہر قم یہیں کا یہیں ہے, ایران یہیں کا یہیں ہے, دنیا جہاں ہے وہیں کی وہیں ہے. تو حرکت کہاں سے ہوئی؟ حرکت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا, چلے جانا. یہ روز کہتے ہیں کہ دنیا حرکت میں ہے, یہ حرکت ورکت کہاں ہے؟ ایک ہاتھ میں کیا ہے جب ایک ہفتہ گزر گیا کہ استاد ایک سے بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ ایک ہفتے سے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا متحرک ہے کائنات حادث ہے, میرے پلے نہیں پڑ رہا, ذرا سمجھا دیجئے. کیوں نہیں پلے پڑ رہا مطہری کا مسئلہ یہ ہے کمرہ ہمارا وہیں جہاں آپ یہ بیٹھے یہاں حال میں 10 دے رہے ہیں, یہ حال یہیں. اگر حرکت ہے تو یہ یہاں نہیں نہ رہنا چاہیے, یہ تو کہیں ہندوستان پہنچ جانا چاہیے, کسی دوسرے ملک میں پہنچ جانا چاہیے. یہ یہاں کہاں ہے؟ اس نے یہاں کس لیے ہیں؟ اوہو مطہری تم سمجھے نہیں. حرکت کا فلسفے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا, بلکہ حرکت کا مطلب یہ ہے ایک حالت میں نہ رہنا. اب ذرا تم ہی بتا دو نا, تم اس حالت میں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہو کیا آج سے مثلا کیا ہے 25-30 سال ویسے ہی تھے؟ کہاں اب سمجھ میں آ گیا. کل تک اماں کی آغوش میں رہتا تھا, پھر گھٹنیوں چلنے لگا تھا, پھر اتنی ہمت ہوگی کہ درس پڑھنے لگا تھا, آج اتنا بڑا ہو گیا ہوں, یہ فلسفی بننے والا ہوں, آپ کے درس فلسفہ میں شرکت کر رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں. اب سمجھ میں آ گیا کائنات حادث کیسے ہے, کائنات متحرک کیسے ہے. اس کا مطلب بدلنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے تبدیلی ایسے ہوتی ہے, کبھی بچپنا, کبھی جوانی, کبھی بڑھاپا, کبھی وجود ہے کبھی وجود نہیں ہوگا. دنیا میں یہی سب سسٹم چل رہا ہے. چھوٹا سا پودا لگایا جاتا ہے, پہلے وہ پودا ہوتا ہے, پھر پیڑ بنتا ہے, پھر پھلدار ہوتا ہے, ایک وقت وہ بھی آتا ہے بیچارہ سوکھ جاتا ہے. ضعیفی اور کمزوری ان پہ بھی آ جاتی ہے. تو کیا متحرک اور تحرک کا مطلب یہ ہے. اب اسی طریقے سے مولانا امام جعفر صاحب ہم سمجھا رہے تھے, مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بالکل نہ تو آزاد ہو نہ بالکل مجبور ہو. امرن بین الامرین, انسان مجبور ہے, اس کے حکم سے تو پتہ بھی نہیں ہلتا. لہذا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کہ شیطان جہنم میں جلے گا. شیطان آگ سے بنا ہے, صاف صاف قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس نے خود یہ کہا کہ میں کس لیے سجدہ کروں جناب آدم کو, اس لیے کہ خلقتانی من نار و خلقتہ من طین, کیا پروردگارا تو نے خدایا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آدم کو مٹی سے پیدا کیا, مٹی سے بنایا ہے. تو آگ کیا ہے مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے. اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا وہاں پہ کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. لہذا انہوں نے کہا صاحب شیطان آگ سے بنا ہے اور کیا ہے آگ کو جلا نہیں سکتی. لہذا یہ بھی نہیں میں مانتا کہ شیطان جہنم میں جلے گا اور سزا اسے ملے گی. اس وقت سب سے بڑی اسے سزا ملی ہوئی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہے, در بدر گھوم رہا ہے, لوگوں کو بہکا رہا ہے, مگر جہنم میں نہیں جل سکتا اس لیے کہ آگ سے بنا ہے. تیسری بات جو آج فرمائی ہے امام نے وہ یہ کہا, یہ فرمایا ہے کہ صاحب کیا ہے خدا ہے مگر دکھائی, یہ بھی عجیب مرحلہ ہے. ایک چیز اور وہ دکھائی نہ دے, عقل میں آنے والی بات ہے کیا؟ جو چیز بھی ہے وہ تو دکھائی دیتی ہے. لہذا یہ 3 باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. جناب بہلول کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا, اندر ان کا درس چل رہا تھا. جناب بہلول رک کے کہ دیکھیں آج کیا سمجھا رہے ہیں. سنتے سنتے یہ تینوں باتیں سنی. اب جب درس ختم ہوا یہ سارے کے سارے شاگردوں کے ساتھ یہ بھی باہر نکلے. جناب بہلول بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے. جب چند قدم آگے چلے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, زور سے مارا, یہ جا کے لگا. اب جب یہاں لگا تو آپ چلانے لگے, زمین پہ گرے. شاگردوں نے سہارا دیا, اٹھایا کہ حضور کیا ہوا؟ کہا او جا رہا ہے, بھاگ رہے سے پکڑ کے لاؤ.
बेचारे को जनाब बहलोल को पकड़ के लेके आ गए शागिर्द सारे, और आने के बाद सामने खड़ा कर दिया। जनाब बहलोल खड़े हैं। हाँ भाई साहब क्या हुआ? कहा क्या हुआ पूछते हो, मार के पूछते हो? कहा मैंने कहा मारा भैया, जो काम भी करवाता है अल्लाह करवाता है, अब अल्लाह से जाके पूछो, उसने मरवाया है। मजाक की सूझी है तुम्हें बहलोल? मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, चोट लगी है। आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, जरा मुझे भी दिखा दीजिए दर्द कहाँ है। कहा दर्द कोई देखने की चीज है? कहा फिर खुदा कोई देखने की चीज है? कहा फिर मजाक बना रहे हो क्या है? मेरे चोट लगी है तो मेरा मजाक बना रहे हो? ये खून नहीं दिखाई दे रहा है? कहा आपके चोट कैसे लग गई? कहा क्यों तुमने मारा नहीं है? कहा बताइए ना मैंने मारा क्या? क्या मैंने कोई हथियार इस्तेमाल किया? मैंने पत्थर उठा के मारा? ये क्या है टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे पड़े हुए? कहा मिट्टी के टुकड़े हैं ना, ये मिट्टी का ढेला मारा। कहा आप किससे बने? हो हम भी तो मिट्टी से बने हैं। कहा मिट्टी मिट्टी को मार नहीं सकती। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ जिसे कहते? मिट्टी मिट्टी को मार नहीं सकती। कहा हाँ बहलोल समझ गया, जो मौला ने फरमाया है वो बिल्कुल सही है। शैतान भी जहन्नम में जलेगा, अल्लाह दिखाई नहीं देगा, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर चीज दिखाई दे, है मगर दिखाई नहीं देगा, और इंसान भी बिल्कुल मजबूर नहीं है। अगर यही अकीदा रखेंगे तो फिर सीधे वहीं चले जाएंगे। लिहाजा अकीदे बदले भी हैं। मैं तफसील नहीं गुजारिश करना चाहता हूँ, मगर इतनी अपने जवानों की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफा पक्के शिया थे। अब वो तो एक तफसीली गुफ्तगू है, वरना फिर क्या है रात 12 यहीं बच जाएंगे, मुझे उस तरफ नहीं उलझना है आपको, वरना इतना बताए दे रहा हूँ। अगर किसी को पूछना हो तो बाद में आके मुझसे समझ ले, आज कल जब भी। पक्के शिया थे, इसीलिए तब क्या है जो फिक भी बनी उन्हीं के नाम से बनी। पक्के मोमिन थे, पक्के क्या है शिया थे, पक्के नमाज शब के पाबंद थे, और मारा भी जेल में डाल के इन्हीं ने है, इल्ज़ाम हम पे है। ये सारी बातें मैं अपनी जगह आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। तो अब आया मसला, तो मैं कहाँ से इधर आया था कि साहब क्या है, आया मौला कायनात के पास। साहब क्या है, कुरान में एक लफ्ज अजीब इस्तेमाल हुआ है और वो ये गैर फंसी है। अब मौला ने बिठाया नहीं, खड़े, कहा ऐसा करो भाई जरा एक पैर उठाओ। अब अली कह रहे, मौला कह रहे, तो उठाया, उसने एक पैर उठा लिया। थोड़ी देर के बाद जब उठाया उसने एक पैर, तो थोड़ा थकने लगा, कहा आप दूसरा भी उठाओ। फौरन अपनी जुबान से कहा हाजा अजबा, ये तो अजब मामला है, एक पैर तो उठा सकते हैं दूसरा नहीं उठा सकते। अभी तो तू आया था कि लफ्ज अजबा का क्या सूरह कहफ में इस्तेमाल हुआ है, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब तूने अपनी जबान से इस्तेमाल किया, मान गया। कुरान का मुकाबला नहीं हो सकता है। तो कुरान इतनी फसीओ बलीग किताब, मोजज़ा, बस गुफ्तगू का आखिरी मरहला, उसके बाद क्या है, इस गुफ्तगू को मैं यहीं समेट दूंगा और रब्ते मसाइब तक मुझे आप हजरात को ले जाना है। जब इतनी फसीओ बलीग किताब है, तवज्जो फरमाइएगा आप, जब इतनी फसीओ बलीग किताब है, मोजज़ा है, हर खुशकोतर इसमें मौजूद है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, लिहाजा फिर यही काफी होना चाहिए ना, यही काफी होना चाहिए ना। इसलिए कि हमने तो एक नारा सुना है ना तारीख में, क्या है, जब रसूल ने फरमाया आखिरी वक्त में कि लाओ कलम और दवात लेके आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नविश्ता एक कुछ लिख के चला जाऊं, तो क्या फरमाया था? उलमा मौजूद हैं कि किताबों में आप हजरात ने पढ़ा, इन्नी तारिकुन फिकुम सकलैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। तो एक साहब उठे थे नहीं कि नहीं उठे थे? महफिल में से उठे थे ना, और उठने के बाद क्या कहा था? हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए तो अल्लाह की किताब ही काफी है, हमें किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। अभी अल्लाह की किताब काफी है। हाँ भाई मैं भी कह रहा हूं, इतनी फसीओ बलीग किताब है, मिंबर से अभी कह रहा हूं, मानता नहीं हूं, अकीदा नहीं है, क्या है, ये इतनी फसीओ बलीग किताब है, मुअज्जा है, इसी को काफी होना चाहिए, इसके साथ किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होना चाहिए। फिर रसूल किस लिए फरमा रहे हैं, इन्नी तारिकुन फिकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। अब आइए फिर कुरान की तरफ आते हैं। सूरह माइदा की आयत है, क्या है, कद जाअकुम मिनल्लाह, कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ अल्लाह, जब तेरी किताब काफी है,
اے اللہ جب تیری کتاب کافی ہے، تیری کتاب معجزہ ہے، تیری کتاب فصیح و بلیغ ہے، تو پھر ساتھ میں یہ کیا اعلان فرما رہا ہے سورہ معاہدہ میں کہ قد جاءکم، کہ تمہارے پاس ہدایت کے لیے آئے ہیں اللہ کس سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، ایک نور ہے ایک کتاب مبین ہے۔ خالی اتنا ارشاد فرما دیا ہوتا قد جاءکم من اللہ کتاب مبین، کہ تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے کتاب مبین بھیج دی ہے، لہذا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اللہ نے پہلے کیا کیا؟ اعلان یہ کیا قد جاءکم من اللہ نور، پہلے نور بھیجا، پھر کتاب مبین بھیجی، پھر قرآن بھیجا۔ پروردگارہ یہ کیا غضب ہو رہا ہے؟ پہلے نور آ رہا ہے، بعد میں یہ کتاب آ رہی ہے۔ کہا اسی لیے تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک کو کافی نہیں سمجھا ہے۔ نہیں جملہ رائے گاں کر دیا آپ حضرات نے، میں نے ایک کو کافی نہیں سمجھا ہے۔ جب اللہ ایک کو کافی نہیں سمجھتا تو پھر یہ بڑے بڑے کیوں ایک کافی سمجھ رہے ہیں؟ اب دو پروردگارہ تو نے دو چیزوں کو بھیجا، آپ سنیے مثال کیا ہے۔ فرض کر لیجئے آپ یہ اعلان کریں، ابھی بتائیں مجھ سے مثلا گفتگو ہو، فرض کر لیے سجادی صاحب یہ کہیں کہ مولانا صاحب ایسا ہے آج اب ہمارے یہاں، کل آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے گا اور ساتھ میں کیا ہے مثلا کیا کہتے ہیں، ناصر سے بھی کہتے ہیں ناصر بھیا آپ بھی آ جانا مولوی صاحب کے ساتھ، آپ بھی آ جانا۔ اب دوسرے دن جب کھانے کا ٹائم ہو نا، مثلا فرض کر لیجئے 1 بج رہا ہو، 1:30 بج رہا ہو، نماز سے فارغ ہوں اور میں کیا ہے ابا کباب پہنے ہوئے کیا ہے سیدھا سجاد صاحب کے اکیلا پہنچ جاؤں۔ سجاد صاحب کہیں وہ ناصر کہاں چلے گئے، وہ ہمارے وکیل صاحب کہاں چلے گئے؟ ہم نے کہا میں ہی کافی ہوں نا، میں ہی کافی ہوں نا، ان کے بدلے کا بھی کھا لوں گا۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا مولوی کتنا کھا لیتا ہے، آپ کو بھی یاد نہیں تو میں کیا کروں، خالی پیٹ بھینس کے برابر کھا لیتا ہے۔ میں ہی کھا لوں گا، بس رہنے دیجیے ناصر صاحب کو، کیا ضرورت ہے ان کے آنے کی، بس میں ہی تو کافی ہوں۔ نہیں صاحب میں نے دونوں کو بلایا ہے، صرف اکیلے آپ کو نہیں بلایا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے نا یہ نعرہ اپنے پاس ہی رکھیے، اس لیے کہ اللہ وہاں سے ایک ہی نہیں بھیج رہا ہے، 2 کو بھیج رہا ہے، پہلے نور کو بھیج رہا ہے، پھر کتاب مبین کو بھیج رہا ہے، پھر قرآن مجید کو بھیج رہا ہے، اور یہ بھی مسئلہ پروردگار ہے، یہ بھی مسئلہ پروردگار ہے۔ اللہ پہلے کتاب کو اتار سکتا تھا، بعد میں نور کو بھیجتا، پھر بھی پروردگار آواز دے گا دنیا کا قانون نہیں جانتے ہو کہ کیا ہے، جب تک خالی کتاب رہے گی، استاد نہیں ہوگا، ٹیچر نہیں ہوگا تو کوئی کتاب نہیں سمجھ پائے گا، چاہے چھوٹی سی چھوٹی قاعدے والی کتاب ہو یا بڑی بڑی کتابیں ہوں، ہر ایک کتاب کے لیے اسی کتاب کے اعتبار سے ٹیچر بھی ہوا کرتا ہے۔ اور میں ایسے جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر خالی کتاب کافی ہوتی تو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو بڑا آسان تھا، پھر کسی ماسٹر کی ضرورت نہیں تھی، بس خالی کتابیں چھاپتا اور ہمیں دیتا رہتا، ہم کتابوں کی گٹھڑی باندھتے رہتے، گھر میں بیٹھ کے پڑھتے رہتے، ہم اپنے وقت کے بہترین ڈاکٹر بھی بن جاتے، ہم اپنے وقت کے بہترین انجینئر بھی بن جاتے، ہم اپنے وقت کے بہترین وکیل بھی بن جاتے، جس موضوع پہ ہم کام کرتے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم وہی کچھ بن جاتے، مگر ہم بن بھی جاتے تو کوئی ہمیں مانتا نہ، پھر لاکھ چلے جاتے صاحب ہم بہت اچھے پڑھے لکھے ہمیں ماسٹر لگا دیجئے۔ کہا وہ زمانہ چلا گیا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ سادہ زمانہ چلا گیا، بیچارے بزرگ لوگ تھوڑے بہت پڑے ہوئے، بس 8ویں پاس یا میٹرک پاس ہونے 10ویں پاس ہونے کے بعد ہم انہیں ماسٹر لگا دیا کرتے تھے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے، اب کیا ہے MA BA ہم کو چاہیے، اب ہمیں پڑھے لکھے چاہیے، ہم انہیں ماسٹر لگائیں گے۔ تو اگر یہ ہوتا کہ صاحب کتابیں کافی ہوتی تو ان بیچارے ماسٹروں کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ جیسا ابھی بیچارے ان لوگوں کی چھٹی چھین لی گئی ہے، ابھی میں نے فیس بک پہ سنا کہ پونچھ اور منڈی والوں بیچاروں نے اچھا کیا مل گیا کیا ہے مل کر کہ ان کی چھٹی بیچاری محرم کی چھین لی گئی۔ تو یہ تو چھٹی چھیننے کے چکر میں تو یہ کہتا ہوں ان کی نوکری چھیننے کے چکر میں ہونا چاہیے حکومت کو، اس لیے کہ کتاب ہی کافی زیادہ، پھر ان کو کس لیے رکھا ہے بلا وجہ، تنخواہیں دے رہے ہیں، پینشنیں دے رہے ہیں، یہ تو سمجھ جائیں گے نا بچے، ہمارے بڑے لائق بچے ہیں، مگر نہیں، آج کا زمانہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وقت کی ضرورت بھی یہ کہہ رہی ہے، اللہ نے پہلے ہی یہ انتظام کر دیا کہ پہلے نور کو بھیجوں گا پھر کتاب کو بھیجوں گا، تاکہ نور سمجھائے اس کتاب کو، بغیر نور کے کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں کہتا ہوں سمجھ کی تو دور کی بات ہے، پھر آپ کے اذہان کو قریب کر رہا ہوں، سمجھنے تو دور کی بات ہے، بغیر نور کے کتاب پڑھی بھی نہیں جا سکتی ہے، بغیر نور کے
किताब पढ़ी भी नहीं जा सकती है। साहब कैसे? ये बिजली क्या है? सादा मिसाल, बिजली नूर है ना। अभी मैं ज़बानी तकरीर कर रहा हूं, इसको ना देखिएगा। ये है कि मसलन आप ही अपने यहां कमरे में बैठे हुए इत्मीनान से, सामने किताब खुली हुई है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मौजू है, मसलन आपको क्या कल वकील में क्या वकालत में एक मसले का क्या केस को निभाना है, उसके बारे में बहस करना है, तो आपने सबसे मोटी वाली किताब वकालत वाली, जिसमें बड़े बड़े वकीलों के अकवाल लिखे हुए हैं, फलां ने इस मसले में क्या फैसला किया था, फलां ने क्या फैसला किया था। उसके बाद क्या है, लेके बैठे पढ़ रहे हैं इत्मीनान से, जिसको कहा स्टडी कर रहे हैं। इतने में लाइट चली जाए, लाइट चली जाए। हमने कहा साहब नासिर साहब जरा और भी पढ़िए ना। नासिर कहेंगे कि वे मौलवी साहब भैया लाइट ही चली गई है, अब मुझे इंतजार करने दीजिए, लाइट आएगी तो फिर जहां तक पढ़ा है वहां से आगे समझूंगा और पढ़ूंगा। तो क्या बगैर नूर के किताब पढ़ी नहीं जाती, तो समझी कहां से जाएगी। लिहाजा नूर अल्लाह ने इसीलिए भेजा, और इसी नूर के बारे में फरमाया कि इस नूर की अजमत को देखना चाहते हो तो ये नूर ऐसे नहीं आया है, बल्कि इस नूर की खासियत यह है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये किताब की भी तालीम देने के लिए आया है, ये हिकमत की भी तालीम देने के लिए आया है। और फिर तारीखी एतबार से और क्या है, वहां से जो कुरान नाजिल हुई, कल ही मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, वैसे तो कुल सहीफों को मिला के तकरीबन 108 सहीफे और किताबें, मगर मशहूर 4 किताबें हैं। मशहूर कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। क्या जरा इंसाफ से बताइए, जब तौरात नाजिल हुई थी तो क्या ज़बूर नहीं थे वहां? जनाब दाऊद नहीं थे? जब ज़बूर नाजिल हुई थी क्या जनाब दाऊद नहीं थे? आप यही तो पढ़ेंगे ना कि पहले जनाब दाऊद थे, बाद में ज़बूर नाजिल हुई, और जनाब दाऊद ही ज़बूर की तिलावत किया करते थे, और इतने प्यारे अंदाज में तिलावत करते थे और पढ़ते थे कि परिंदे भी आके उनकी आवाज को सुना करते थे। उसके बाद फिर मैं कहूंगा साहब क्या है, जब क्या है तौरात नाजिल हुई उस वक्त जनाब मूसा का वजूद नहीं था। नहीं, जनाब मूसा मौजूद थे। कौम ने जिद की थी कि जाके किताब भी ले आइए पहाड़ पे। बात आगे तो फिर गुजारिश करना चाहता हूं कुरान ही के एतबार से। जनाब मूसा ने कहा ना ठीक है मैं जा रहा हूं 30 दिनों के लिए। मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूं? 30 रात इस्तेमाल हुआ वहां पे, लफ्ज़ लैल इस्तेमाल हुआ आयत में, मगर अरबी जबान में लैल दिन और रात दोनों को कहा जाता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान से क्या है 30 रातों के लिए। परवरदिगार ने फिर क्या किया? 10 रातें और बढ़ा दी। पूरी तफसील नहीं गुजारिश करना चाहता हूं, 10 रातें और बढ़ा दी। इधर सामरी बैठा हुआ था, तवज्जो फरमाइए, सामरी बैठा हुआ था जो जनाब मूसा का बड़ा मानने वाला जिसे कहा जाए। जब तो क्या 30 दिन हुए, 31वां दिन आया, अब जरा इसने प्रोपगंडा शुरू किया कि देखो मूसा कलीमुल्लाह जरूर हैं मगर वादे के पक्के नहीं निकले। 30 दिन के लिए गए थे, आज 31वां दिन है। फिर जब 32वां दिन आया तब भी जनाब मूसा तो नहीं आए ना। फिर कहने लगा देखिए आज 2 दिन और गुजर गए हैं, ये नहीं आए, लिहाजा मैं आप कुछ करने वाला, लिहाजा मैं कुछ करने वाला हूं। वह कौम ने भी कहा कर जी कीजिए ना जो कुछ करना है, हम क्या करें, जहाँ मूसा को मारना है जाके मारा ये पहाड़ पे कोई तूर पे। नहीं 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 ये नहीं करना, मुझे इतना बड़ा गुनाहगार नहीं बनना है। मैं एक मुजस्समा तैयार कर रहा हूं जिसे बछड़ा कहा जाता है, और सोने से तैयार करूंगा। मालदार है, सोने से तैयार किया, उसके अंदर आवाज भी पैदा कर दी। उसके जैसे वो बीन बजाने में आवाज आती है कि नहीं आती है, सुर बजाने में आवाज आती है कि नहीं आती, उसने बना दिया ऐसा और उसमें आवाज पैदा कर दी। जब हो गए 39 दिन, तवज्जो फरमाइएगा, उसने ला के खूबसूरत सा सोने का बना हुआ बछड़ा रख दिया और उसमें आवाज भी पैदा कर दी। सारी की सारी कौम राम 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 शुरू हो गई। अब हम किसी खुदा वुदा को नहीं मानेंगे, हमें किताब विताब की जरूरत नहीं है। अब तो ये हो गया। अब मैं जुमला कुरानी तफसीर के एतबार से कहना चाहता हूं, जब कौम बनती है तो बड़ी मेहनत लगती है। नारायगा कीजिएगा, क्या है, जब कौम बनती है तो बड़ी मेहनत से बनती है, और जब बिगड़ती है तो लम्हों में बिगड़ जाती है। इसलिए कि सामरी के कितने दिन लगे थे बिगाड़ने में? भाई ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 9 दिन। 9 दिन में उसने ऐसा बिगाड़ दिया कि जनाब बेचारे हारून भी तबलीग करते रहे मगर कुछ असर नहीं हुआ। और जनाब मूसा जब लौट के आए किताब लेके, तौरात लेके, तो गुस्सा भी हुए ना जनाब हारून ही के ऊपर कि भैया हारून ये क्या हो गया है। कहा क्या करूं, मैं जोर से काफी समझाता रहा
मगर ये बछड़ा इनके सामने ऐसा आया कि ये फिर मेरी कुछ बात मान नहीं रहे। तो मैं गुजारिश की है कि कौम जब बिगड़ने पे आती है तो लम्हात में बिगड़ जाती है। और हमारे और आपके दूसरे तजर्बे भी है ना, हम जब मकान बनाते हैं तो क्या मकान 2-4 दिन में बन जाता है? बड़ी मेहनत से बनता है। और जब बुलडोजर चलता है तो फौरन खत्म हो जाता है। लिहाजा बस यही है कि हम अगर बन रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि ये अज़ाए हुसैनी, ये मजलिसें, मैं एक जुमला कहा करता हूं, ये मजलिसें, ये माह मुहर्रम लिबास ही बदलने का नाम नहीं है, किरदार बदलने का नाम है। जब हमारा किरदार यहां बदल जाए तो हम जनाबे मूसा की कौम की तरह ना बन जाएं, हम अली की तरह बने कि फिर हम दोबारा क्या है गुनाहों से गुनाहों के दलदल में ना आके फंस जाएं, गुनाहों से दूर रहें। तो मुझे जुमला गुजारिश करना चाहता था कि 10 दिन बढ़े, कौम बिगड़ गई। अब समझ में आया कि जो कौम इंतजार ना करे, बड़ा जबरदस्त जुमला अर्ज कर रहा हूं, अगर आप वहां पहुंच गए, क्या है कि अगर क्या है जो कौम इंतजार नहीं करती है उसका रिश्ता सामरी से मिलता है, और जो इंतजार करती है उन्हें मूसवी कहा जाता है, उनका रिश्ता जनाबे मूसा से मिलता है, अहले बैत से मिलता है। हमें क्या है ये फख्र है कि हम भी एक अपने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये हुआ कि कुरान तन्हा नहीं है, कुरान के साथ साथ नूर। अच्छा, किताबें कितनी नाजिल हुई? 4, मशहूर यही है ना, 4 किताबें। पढ़ाने वाले कितने? 1 लाख, रसूल 313। हालांकि होना यह चाहिए था कि 4 किताबें थी, 4 उस्ताद यानी 4 नबी आ जाते तो काफी थे, 4 रसूल आ जाते तो काफी थे। भाई जनाब क्या ज़बूर को समझाने के लिए जनाब दाऊद, तौरात को समझाने के लिए जनाब मूसा, इंजील को समझाने के लिए जनाब ईसा, कुरान को समझाने के लिए हमारे नबी, बस काफी थे ना। ये आदम से लेके इतना लंबा सिलसिला जो हम गिन भी नहीं सकते हैं, शुमार भी नहीं कर सकते हैं। वरना किसी को याद है 1,24,000 के अंबिया के नाम? कहेंगे 4-5 तो जो मशहूर हैं उनको तो बड़ी मुश्किल से तंजीम में याद किया था मकतब में, अब आप 1,24,000 हमको बता रहे, किसके पास की बात है? लिहाजा मगर अल्लाह ने यह इंतजाम किया। और मेरा ख्याल है, मैं फिर जुमला गुजारिश करना चाहता हूं, शायद दुनिया वालों ने भी कुरान से भी ये दर्स लिया है, अल्लाह से ये दर्स लिया है कि देखो किताबें कम हुआ करती हैं, उस्ताद टीचर ज्यादा हुआ करते हैं, इसलिए कि एक टीचर के पास की बात नहीं हुआ करती है। लिहाजा अल्लाह ने किताबें 4 भेजी, नबी 1,24,000 मुअल्लिम बना के भेजे। मगर आखिरी गुफ्तगू कल की गुफ्तगू से मिलाना चाहता हूं कि कल मैंने आपकी खिदमत में यह गुजारिश किया था कि बाकी तीनों किताबें बदली हुई है। आपको ज़बूर उर्दू में शायद मिल भी जाएगी, वो तो बेचारी चूंकि दुआओं की किताब है लिहाजा इतनी शाया नहीं होती है, मगर तो तौरात आपको मिल जाएगी उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिस जबान में आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी। इंजील आपको मुख्तलिफ जबानों में मिल जाएगी, मगर कुरान आपको सिवाय अरबी के दूसरी किसी जबान में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अरबी ही में, तर्जमा मिल जाएंगे दूसरी जबानों में, तो तर्जमा कुरान नहीं है। हुक्म शरीयत भी यह है कि बेवुजू आप तर्जमा तो को छू सकते हैं मगर आयत को नहीं छू सकते हैं। आयतें आपको सूरे जो हैं 114 आयतें जो मशहूर है, अलबत्ता है ज्यादा हैं, 666 यानी जितनी भी आयात हैं वो सब के सब अरबी ही जबान में, जैसे वहां से उतरी वैसे ही आज तक और क़यामत तक बाकी रहेंगी। भाई राज क्या, मैं राज कल नहीं गुजारिश कर सका, आज गुजारिश कर रहा हूं, उसके बाद मसाइब की तरफ जा रहा हूं। ऐ परवरदिगार ये राज क्या है? वो भी 4 तेरी किताबें, 3 तेरी किताबें, ये 4थी भी तेरी किताब। वो किताबें बदल गई, ये किताब क्यों नहीं बदली? इसे भी बदल जाना चाहिए, हमारे लिए आसानी हो जाती। हम उर्दू में कुरान पढ़ते जल्दी समझ जाते, अरबी जल्दी से समझ में नहीं आती, हमको क्या तर्जुमा ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, मुख्तलिफ उलमा के तर्जुमा लेने पड़ते हैं, उनका मुतालिया करना पड़ता है। खाली उर्दू में पूरा का पूरा कुरान हमें मिल जाता। जिस तरह क्या है तौरात के सूरे हैं वहां भी सूरत है, वैसे हमारे सामने कुरान के सूरे आ जाते उर्दू जबान में, या हम हिंदी जानने वाले तो हिंदी जबान में आ जाते, अंग्रेजी जानने वाले तो अंग्रेजी जबान में आ जाते। हम कुरान को अच्छी तरह समझते ना। ये क्या बात है, कुरान अब भी अरबी ही में है और वो किताबें अब अरबी में अपनी असली जबान में नहीं है बल्कि बदल चुकी हैं। तो फर्क यह तवज्जो फरमाइएगा, फर्क यह है कि उन किताबों को उनके वारिस ने
उन किताबों को उनके वारिस ने, उन किताबों को उस नबी ने जिस पे हमने नाजिल की थी कौम के उम्मत के हवाले कर दिया था, लिहाजा उनमें तब्दीली हुई। कुरान को हमारे आखिरी नबी ने, रहमतुल आलमीन ने, सैयदुल मुरसलीन ने, खातमुन नबीयीन ने उम्मत के हवाले नहीं किया, अहले बैत के हवाले किया है। अब मैं जुमला तारीखी गुजारिश करना चाहता हूं अपने मिजाज के एतबार से। उन किताबों में खाली मूसा बचाने वाले थे, कोई दूसरा मूसा बचाने वाला नहीं आया। इंजील को खाली ईसा बचाने वाले थे, मगर कोई दूसरा ईसा उसको बचाने के लिए नहीं आया। मगर कुरान वो किताब है कि जिसमें जो एक मोहम्मद पे नाजिल हुई, एक मोहम्मद ने पहुंचाया, 12 मोहम्मद ने बचाया। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद ने। लिहाजा 12 मोहम्मद जिसे बचाए उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। इसी शायद यही भी राज हो कि 12वें को इसीलिए पर्दा गैब में रखा कि इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो कुरान वो मुक़द्दस व मुशर्रफ किताब है, वो बाज़मत व बाकमाल किताब है, वो फसी व बलीग किताब है कि इसके अंदर जितना इंसान तदब्बुर करता चला जाए, जितनी फ़िक्र करता चला जाए, जितना गहराई में जाता चला जाए, उतनी उसको नई नई बातें हासिल होती रहेंगी। लिहाजा आप हजरात से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी कुरान की तिलावत का शरफ़ हासिल किया कीजिए, साथ में एक ही तर्जुमा ना, बस मौलाना फरमानी साहब का तर्जुमा मसलन या अल्लामा जवादी रिज़वानुल्लाह का तर्जुमा नहीं। मैं यहां तक आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं अशरफ अली थानवी का भी इस्तेमाल किया कीजिए, उन हजरात का भी क्या तर्जुमा देखा कीजिए। जितना गहराई में हम जाएंगे, तफासिर का मुतालिया करेंगे, जो उर्दू ज़बान में हमें तफासिर मिलती हैं, या जिस ज़बान में हम जो हम अंग्रेज़ी भी जानते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान में हमें कोई तफसीर मिलती है, तो हम फ़ारसी जानते हैं तो फ़ारसी ज़बान में हमें जो तफसीर मिलती है, जितना तफासिर का मुतालिया करते चले जाएंगे उतना ही हम कुरान की गहराइयों को समझते चले जाएंगे। और बस मैं जुमला रब्ते मसाइब के उन्वान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक मोहम्मद कुरान लाया था, एक मोहम्मद ने कुरान पहुँचाया था, 12 मोहम्मद ने कुरान को बचाया है। और जिनमें सबसे पहले इमाम हुसैन ने भी यही ऐलान किया है, मैं इस्लाम को बचाने जा रहा हूँ, मैं कुरान को बचाने जा रहा हूँ। जब 28वीं रजब आई और उसके बाद मौला ने मदीने को छोड़ना चाहा, तो अब्दुल्ला बिन सिनान ये कहता है, कूफे का रहने वाला ये था, अब्दुल्ला इब्न सिनान एक कूफी से कहा जाता था, ये मुझे अहले बैत का चाहने वाला था। ये 28-27 रजब को ये मदीने में पहुंचा और इसने रात के सन्नाटे में ये देखा कि आज मदीना कुछ सुनसान नजर आ रहा है। इससे पहले जब मैं आया करता था, जो मदीने में मैं रौनक देखा करता था, आज की रात मुझे वो रौनक दिखाई नहीं दे रही। आप पूछना शुरू किया कि भाई क्या मामला है, ये उदासी सी क्यों मदीने पे छाई हुई है? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, सुबह नवासे रसूल यहाँ से तशरीफ़ ले जा रहा है, हिजरत कर रहा है। अब मदीना सुनसान नहीं होगा, नबी की कब्र सुनसान नहीं होगी, ज़हरा की कब्र नहीं थरथराएगी, हसन नहीं परेशान होंगे।